Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture of chemistry. I hope you all are good. Students, we are learning the chapter chemical bonding and today we are going to study parameters of covalent bond. Let us see the first parameter. First parameter which we'll discuss today is bond angle. Now here in the picture you can see a water molecule is shown and an angle between HOH bond is shown. So actually this is not an angle between alphabet H, O and H, but it is an angle between the orbitals that contains the electrons for the formation of covalent bond. So what is written here? We know that the electrons which participate in bond formation are present in orbitals. The angle between the orbitals holding the bonding electron is called bond angle. For example, here HOH bond angle is given, which is found to be 104 degree and some minutes. Okay, so this bond angle is the angle between the orbitals that holds the electron which participates in the bond formation. Now, bond angle can be determined experimentally using spectroscopic techniques. What idea or what information we can get from the value of bond angle? We will get to know about the arrangement of orbitals in a molecule and we'll get to know about the shape of the molecule from the bond angle. So if we have the knowledge of bond angle, we can have the knowledge of geometry and shape of the molecule. Here bond angles of some molecules are given. HOH bond angle is 104 degree 28 minutes. NH3 में HNH bond angle would be 107. In BF3, FBF bond angle is 120 degrees. So some examples are given here of bond angles. Now let's see the next one. Next one is bond enthalpy. Now what is bond enthalpy? We know that whenever a bond is formed between different atoms, energy is released and the resulting molecule have certain minimum energy which gives stability to that molecule. In the same way, if we want to break the molecule, we have to supply same amount of energy to break that bond between those atoms. So the amount of energy required to break 1 mole of bond of one type present between two atoms in gaseous state is termed as bond enthalpy. This is the definition of bond enthalpy. The amount of energy required to break 1 mole of a bond of one type present between two atoms in the gaseous state is termed as bond enthalpy. Now, if we have a diatomic molecule, means the molecule that is made up of only two types of atoms, the atoms can be same or different, okay? Like H2, Cl2, O2, N2, these are diatomic molecule with same type of elements atom. Whereas we can also have a diatomic heteronuclear molecule where two atoms can be of different elements such as HCl, HBr and many more. Okay, so when we have a diatomic molecule, the bond enthalpy and bond dissociation energy is same. For example, for H2 molecule, the amount of energy required to break a hydrogen-hydrogen single bond is found to be 435.8 kilojoule per moles. Okay. Now also remember that bond enthalpy is expressed in kilojoule per mole. Now the bond enthalpy is the measure of what idea do we get from this bond enthalpy, value of bond enthalpy. If the bond enthalpy is higher, it means the bond is very strong and we require more energy to break the bond. So the basic idea which you get from the bond enthalpy
is about the strength of the bond between the two atoms. Okay, कितना मजबूत है बॉन्ड दो एटम्स के बीच में. ज़्यादा एनर्जी लग रही है मतलब ज़्यादा मजबूत था बॉन्ड, इसीलिए उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है. ठीक है. नाउ दीज वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ओके. Now nitrogen bond in N2 is stronger than oxygen bond in O2. Now what is the reason? In nitrogen and oxygen both are diatomic molecules. Okay, but the bond enthalpy for nitrogen is stronger. For breaking the nitrogen single bond is stronger than the oxygen single bond. This is the reason is that in N2 molecule the nitrogen atoms are bonded by a triple bond. 3 bonds are there between 2 nitrogen atoms, whereas in oxygen molecule the oxygen atoms are bonded by double bond and they have 2 bond between 2 oxygen atoms. When you look at the H2 molecule, the 2 hydrogen atoms are bonded by single covalent bond. Okay, so when we'll analyze the bond enthalpy of these 3 molecules H2, O2 and N2, you will observe that the bond enthalpy of H2 is lowest, the bond enthalpy of oxygen is greater than H2 molecule, and the bond enthalpy of nitrogen is greatest than the later two. Okay, so why this happens? This happens because of the number of multiple bond between the atoms. It indicates that the presence of multiple bond increases the strength of the bonded atoms and the amount of energy required would be greater. Okay, so remember, the bond enthalpy determines the strength of the bond between the atoms, as well as it depends on the number of covalent bond present between the two atoms. Okay, it depends, the magnitude of the value of this bond enthalpy depends on how many bonds are present between the two atoms. It is easier to break, or amount of energy required to break a single covalent bond between the two atoms is less. But if the two atoms are bonded by double or triple bond and you want to again break the single bond only, but the amount of energy required would be greater. Okay, would be higher, because the presence of multiple bond increases the strength of the bonded atoms. It increases the bond strength. Understood? So bond enthalpy depends on the number of multiple bond. Another criteria of bond enthalpy is larger the for heteronuclear atomic diatomic molecule, the bond enthalpy and bond dissociation enthalpy both are same. So whenever you have only diatomic molecule, whether it is heteronuclear or homonuclear, it means they are made up of same type of atom or different type of atom, the bond dissociation enthalpy and bond enthalpy would be same. Okay, but what happens when we have the polyatomic molecule? अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 से ज़्यादा एटम से बना है, तो फिर क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी पे इफेक्ट? तब भी क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगी? अब देखते हैं. ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का. वाटर मॉलिक्यूल में वी हैव 2 OH बॉन्ड्स, है ना, H बॉन्डेड टू O, दैट O इज अगेन बॉन्डेड टू H. तो वी हैव 2 OH बॉन्ड. तो जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो फर्स्ट 1 बॉन्ड डिसोसिएट. ठीक है, तो एक OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज फाउंड टू बी 502 किलोजूल्स पर मोल. ठीक है, तो पहली स्टेप में जब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो आपके पास एक होल वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन को तोड़ के अलग कर रहे हो. अब आपके पास बचा है OH और H. अब इस अकेले OH में भी एक O और हाइड्रोजन का बॉन्ड है. तो व्हेन यू रिमूव दिस OH बॉन्ड, अगेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी नीडेड.
Now the amount of energy needed to break the OH bond in the second step is less, it is 427 किलोजूल पर मोल. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अपनी आ रही है 427 किलोजूल per mole. So in case of such type of molecules where we have the same covalent bond, like in case of water, हमारे पास दो OH बॉन्ड है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी हमारी अलग अलग आई है. सो इन सच केसेस, instead of taking the different bond enthalpies for the same type of covalent bond, हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज का एवरेज निकाल लेते हैं. तो 502 तो प्लस 427 टू बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पी है, सो डिवाइडेड बाय 2, उसका एवरेज निकाले and we'll get the value 464.5 kilojoule. So instead of using the correct individual bond dissociation enthalpy for every covalent bond, we prefer to use average bond enthalpy for expressing the bond enthalpy of same type of bond. ठीक है, तो polyatomic molecules में क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी होगी. लेकिन व्हेन विल डू द कैलकुलेशन ऑफ, विल यूज़ दिस डेटा फॉर एनी कैलकुलेशन, जब आप इस डेटा को किसी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करने जाओगे तो विल नॉट यूज़ द सिंगल डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. हम लोग अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू को नहीं लेते हैं. इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ले लेंगे उस तरह के बॉन्ड्स के लिए और उसी को कंसीडर करेंगे उसकी बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, अब ऊपर वही बात लिखी हुई है. इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर नॉट आइडेंटिकल. एवरी स्टेप में यू कैन सी दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डिफरेंट. Okay, so we take bond enthalpy as the average of these bond dissociation energies. ठीक है, I hope you have understood what is bond enthalpy. Bond enthalpy होती है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को, पर्टिकुलर टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल ऑफ दैट कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम तरह के एलिमेंट से बने हैं और सिर्फ दो एटम्स है उसमें, लाइक H2O2 N2. हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी दो एटम से बने हुए ऐसे मॉलिक्यूल जिसके दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे HCl है, HBr है, HF है. और फिर उसके बाद हमने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे मॉलिक्यूल जो दो से ज़्यादा एटम से बने हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि H2O जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. ठीक है, एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ हमको क्या पता चलता है, जो भी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, किसी भी दो एटम्स के या दो से ज़्यादा एटम्स भी होते हैं हमको पता है, लेकिन जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हमको कोई भी दो एटम को कंसीडर करना पड़ता है. तो किसी भी दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. तो व्हाट इज़ रिटन हियर, bond length implies the equilibrium distance between the nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बना रहे हैं, उन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए और वो जो सीधी लाइन का डिस्टेंस मेजरमेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ. हाउ डू वी फाइंड द बॉन्ड लेंथ, बाय यूजिंग एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स. ये भी हम लोग एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से पता करते हैं व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ एनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ओके, नाउ बॉन्ड लेंथ्स आर एक्सप्रेस इन जनरली एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर. बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी हम किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस कर रहे थे, एंगल को डिग्रीज में,
बॉन्ड एंगल को डिग्रीज में एक्सप्रेस कर रहे थे, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे हम या तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में या फिर पिकोमीटर यूनिट में, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है 10⁻10 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 meters, and 1 picometer is equal to 10⁻12 meter, and it is a very small length unit, okay. 1 picometer equals to 10⁻12 picometer, ठीक है। now each of the bonded pair contributes to the bond length। हमको पता है जितने भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व, वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर कंट्रीब्यूट करते। द टू मेन फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द बॉन्ड लेंथ आर साइज ऑफ द एटम्स दैट आर फॉर्मिंग द बॉन्ड एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। दो फैक्टर्स जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं उसमें नंबर 1 इज कि व्हाट इज द साइज ऑफ द एटम्स विच आर फॉर्मिंग द बॉन्ड, ठीक है। ज़्यादा बड़ी साइज रहेगी एटम्स की अगर जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उनका रेडियस भी ज़्यादा है एटम का, तो उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ वुड बी ग्रेटर। सो इफ़ द साइज ऑफ द एटम्स विच आर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इज लार्ज, the bond length would be larger, the value of bond length would be larger, ठीक है। and if it is small it would be smaller, obviously। the second factor that determines the bond length is multiplicity of the bonds, यानी दो एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद दो एटम्स के बीच में बढ़ेगी उतना ही उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे से बॉन्डिंग की कैपेसिटी वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। सो वील फाइंड दैट फॉर एग्जांपल वी नो दैट कार्बन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड विथ ईच अदर। तो व्हेन यू ऑब्जर्व द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ विथ द and you compare it with the bond length between carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond, you will find that the carbon carbon single bond length is greatest of all। उससे छोटी होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ और सबसे छोटी होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ, ओके। सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड विल ऑल्सो डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ। द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बॉन्ड लेंथ आर साइज ऑफ द एटम and the multiplicity of the bond। larger size and यानी bond length और size of the atom क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इन मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती जाएगी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। द नेक्स्ट वन इज bond order। bond order in simple word is the number of covalent bond present between the two atoms। किसी एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप बोलोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। दो है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड, तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, या 3 रहा तो 3, ठीक है। चलो रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीविस थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कितना कोवेलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में किसी मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग बोलेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड ऑर्डर इन हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल में हमको पता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 1। देन वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। O2 में जो दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो व्हाट वुड बी द बॉन्ड ऑर्डर, इट वुड बी 2। In the same way for nitrogen molecule we know that in nitrogen the 2 nitrogen atoms are triply bonded with each other, so bond order for nitrogen is 3, okay। So bond order is nothing but the number of covalent bond that is present between the two atoms in a molecule। as bond order increases, जैसे जैसे bond order increase होता है bond enthalpy भी increase होती है,
एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। अब देखो यहाँ पे रिलेट कर रहा है डिफरेंट पैरामीटर्स को ईच अदर से। ओके, वी आर रिलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर विथ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको पता है जितना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है, इज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज मतलब मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेज, द बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जितना बॉन्ड लेंथ कम होती है उसका मतलब उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग को पता है आर फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स। ओके, सो इन अ मॉलिक्यूल when a covalent bond is formed between the two same type of atoms of same elements, like जब एक covalent bond एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स एटम्स के बीच में जो सेम ही एलिमेंट के, जैसे H2 का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, F2 है, Cl2 है। तो when we have the covalent bond between the same atoms of the same element, the two atoms or more atoms which are forming the bond are shared between the same type of atoms with same type of electronegativity। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ये दो सेम तरह के एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है जिनकी तमाम प्रॉपर्टीज एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम है। दोनों हाइड्रोजन आर एग्जैक्टली सेम, both the fluorine are exactly same, both the chlorine are exactly same। Okay, so both these atoms equally share the bonding pair of electron with each other। वो जो इन लोग का इलेक्ट्रॉन पेयर है जो ये एक दूसरे से शेयर करके कोवेलेंट बना रहे हैं बॉन्ड, वो दोनों इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा नहीं है, किसी के पास थोड़ा कम नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम एग्जैक्टली सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपने शायद पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट के एटम की अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कोवेलेंट बॉन्ड के अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ हमको पता है दो बोथ द एटम्स आर सेम, सो देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड ऑल्सो बी सेम एंड दे विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम स्ट्रेंथ। ओके, तो उनकी एक दूसरे को कैंसिल करती है, वो दोनों बराबर से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन when the bond is between two different atoms of two different elements, ठीक है, अब बॉन्ड जब बन रहा है दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में जब बनेगा, तो whenever we have the atom of two different elements they will have some difference in their electronegativity। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, because of that difference in the electronegativity what happens, the atom which is more electronegative, it means it has more tendency to withdraw the electron pair towards itself, will pull the electron pair or the bonding share towards itself। अब क्या होगा, अब जब दो एटम्स ऐसे बॉन्ड बनाते हैं जिसमें किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है। ठीक है, और वो जो दूसरा वाला है जो कमज़ोर है, हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लेस, इट विल डू व्हाट, इट विल lose some, it is not completely losing but it will lose some electron pair towards that more electronegative atoms। जैसे कि आप दो लड़कियां एक बेंच पे बैठ रही, एक थोड़ी सी तंदुरुस्त ज़्यादा और एक दुबली पतली है, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, जो तंदुरुस्त वाली है वो ज़्यादा जगह ले लेगी बेंच पे और कमज़ोर दुबली पतली वाली कम जगह लेगी बेंच पर। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरह से जब दो
डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्डिंग पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, और जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ा उसको दे देगा, भाई तू ले ले, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पुशिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स वन ऑफ द एटम, अब ये क्या हो रहा है, द here in this example HF bond is given. So fluorine is very electronegative as compared to hydrogen. So fluorine pushes the pulls the electron pair towards itself. वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर उससे थोड़ा दूर जा रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। पार्शियल हम बोल रहे हैं, कंप्लीट नहीं। अगर कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब हम लोग कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल कोवेलेंट बॉन्ड है, लॉस एंड गेन नहीं हो रहा है, खाली क्या हो रहा है, एक की तरफ ज़्यादा चला जा रहा है बॉन्डिंग पेयर, एक की तरफ कम, ठीक है। इसके लिए पार्शियल चार्जेस विल डेवलप ऑन द एटम्स, सो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, and the less electronegative atom will get the partial positive charge in it. So still the molecule is having a covalent bond, but with the development of partial positive and negative charges. A positive pole is formed and a negative pole is formed on the atom. Because of the development of these poles on the covalently bonded atoms, the non-polar covalent bond becomes the polar covalent bond. अब क्या हो गया, ये पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई है कोवेलेंट बॉन्ड पे, और हम लोग अब इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? It is the polarity that is induced on the bonded atom due to the difference in the electronegativities of these atoms. Okay, तो ये होता है क्या, polar covalent bond. I hope you all have understood. Now go through it one more time, you will get it more clearly. Okay, Allah Hafiz.